So good evening everyone again. Now start putting your attendance in the chat box. Amar, you need to put your attendance again. Krishna, you also. Tanvi, Lavanya, Om, Atharva. Now Amar, Bhairavi. These students have put their attendance correctly. Krishna, put your name, your standard, and your medium in the chat box. Okay. Krishna, you should reply. I'm talking to you. Don't you think you should reply? Okay, let it be. Chalo. So let me just present my screen. I hope my presentation is now visible to you students. Yeah, please give me the confirmation. Okay, good. Okay, so in the previous lecture we have seen IUPAC nomenclature system, correct? तो उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कंबस्शन, भी हमने जो है वो देखा था, लेकिन हमें थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेंगे एंड वी विल मूव फर्दर. ओके, तो कंबस्टन यानी कि क्या, अगर आसान भाषा में कहा जाए तो ज्वलन, जलना, किसी चीज का जलना. ओके, तो नॉर्मली कंबस्टन किस चीज का होता है? कार्बन का. व्हेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन को जब व्हाट वी कैन से जलाया जाता है तब व्हाट वी गेट, कार्बन डाइऑक्साइड वी गेट, हीट वी गेट एंड लाइट वी गेट. तो कंबस्टन में क्या क्या मिलता है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, हीट मिलती है और लाइट मिलता है. ये तीन चीजें हमें कंबस्टन रिएक्शन में मिलती है, ये हमें ध्यान में रखना है. ओके, नाउ ये जो एक्सपेरिमेंट था ये मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था, इसमें कुछ खास नहीं है, तो विल क्विकली मूव टू द ऑक्सीडेशन. नाउ यू हैव सीन दैट carbon compounds start burning by combining easily with oxygen in the air when ignited in air. In this process of combustion, all the chemical bonds in the molecule of carbon compounds break and CO2 and H2O are formed as the product. In other words, the carbon compound is completely oxidized during combustion. Chemical compounds can also be used as a source of oxygen. Substances that can give oxygen to other substances are called oxidants or oxidizing agents. Potassium permanganate or potassium dichromate are commonly used as oxidizing agents, and oxidizing agents affect on certain functional groups in the presence of carbon compounds. तो oxidization means what? कार्बन का ऑक्सीजन, या फिर what we can say, let us suppose one compound is there. Okay, one compound is there, and when we what we can say, when we pass it through the oxidation process, अगर हम उसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस में पास करें तो उससे हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और H2O मिलेगा, यानी कि दो एलिमेंट्स मिलेंगे, या फिर दो कंपाउंड्स हमें अलग अलग मिलेंगे, दो सब्सटेंसेस मिलेंगे, और उन दोनों में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा. ओके, मतलब कि उनका ऑक्सीडेशन हो गया है. तो ये ऑक्सीडेशन के लिए कुछ हम जो सोर्सेस है वो सोर्सेस भी यूज करते हैं. सो दीज सोर्सेस कैन बी पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट. these are the oxidizing agents that are commonly used. so oxidation को समझने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है. उसमें एपरेटस देखिए क्या क्या है. एपरेटस है टेस्ट ट्यूब, बंसन बर्नर, measuring cylinder, dropper, etc. now chemicals are ethanol, dilute solution of sodium carbonate, dilute solution of potassium permanganate. Now take 2-3 ml ethanol in a test tube, add 5 ml of sodium carbonate solution to it, and warm the mixture by holding the test tube on the burner for a while. Do drop-wise addition of dilute potassium permanganate to this warm mixture with stirring. Does the typical pink color of potassium permanganate stay as it is on addition? Does the pink color stops vanishing?
and stays on after this process of addition, after some time of the addition process. Okay, तो इसमें देखिए ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट है ना, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा सोडियम कार्बोनेट को और इथेनॉल को। ठीक है, तो इसमें जब तक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, जब तक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, तब तक पोटेशियम पर मैग्नेट का जो पिंक कलर है वो वैनिश हो जाएगा, मतलब कि वो पिंक कलर नहीं रहेगा। ठीक है, जब हम उसे ड्रॉप करेंगे ना उस सोडियम कार्बोनेट की सॉल्यूशन में, तो जैसे ही हम उस पिंक कलर की सॉल्यूशन, पिंक कलर के केमिकल को डालते हैं, तो उसका कलर चला जाएगा पिंक। कब तक चला जाएगा, जब तक कि वो जो हमने केमिकल रखा है ना सोडियम कार्बोनेट का, वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ना हो जाए। वंस द सॉल्यूशन गेट ऑक्सीडाइज, देन द सॉल्यूशन विल गेट स्टार्ट और इट विल स्टार्ट गेटिंग द पिंक कलर, मतलब कि जो हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट हम एक्सेस डाल रहे हैं वो अभी ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है किसी भी एलिमेंट के साथ में, तो उसका कलर जो है वो चेंज नहीं होगा, दैट विल बी एज इट इज, दैट विल बी पोटेशियम पर मैग्नेट इटसेल्फ। सो in the above activity, ethanol gets oxidized by alkaline potassium permanganate to form ethanoic acid. See, ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, इथेनॉल हो रहा है, और ऑक्सीडाइजेशन होने के बाद में इथेनॉल, इथेनॉल का क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड बनेगा। only certain bonds in the vicinity of the functional group take part in this reaction. The following equation will explain this. So this is the equation of ethanol एंड जो पोटेशियम पर मैग्नेट है यहाँ पे हमें, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे मिल रहा है इसको, एंड दिस इज बीन गेटिंग इथेनोइक एसिड, it is being getting converted to ethanoic acid. Now on adding the pink colored solution of potassium permanganate to ethanol, the pink color disappears in the beginning. This is because potassium permanganate is used up in the oxidation reaction, as I told you. At a certain point of addition, oxidation of all the quantity of ethanol in the test tube is complete. If addition of potassium permanganate is continued beyond this point, then it is not used up and becomes excess. The pink color of this excess potassium permanganate does not vanish but stays as it is. ठीक है, तो मैंने जैसे मैंने आपको बताया था ना, तो उसी तरह की ये रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, और इस तरह से जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका कलर शुरुआत में जो है वो चेंज हो जाएगा टू व्हाइट, बट आफ्टर दैट इट विल बी पिंक इटसेल्फ. नाउ आई जस्ट वांट टू शो यू something on YouTube. So for that, you just give me few seconds. Okay, so I'll be right back with the thing that I want to show you. Okay, just few seconds. Few more seconds, students. Okay, now the YouTube video is, I think, visible. Know what carbon compounds for. Okay, let me just mute this. तो सी, हम यहां से शुरू से देखेंगे. ओके, तो कंबस्टन रिएक्शन क्या होती है, देखिए कंबस्टन रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे मीथेन आपको दिख रहा है. ओके, और यहाँ पे ऑक्सीजन है. तो सी, कार्बन का एटम जो है वो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के दो एटम्स के साथ में यहाँ पे मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, एंड H2O यहाँ पे हमें मिल रहा है, दैट इज कंबस्टन रिएक्शन दैट वी हैव सीन. ओके,
reaction that involves addition of oxygen to a compound is also termed as an oxidation reaction. Now let's move further. तो देखिए यहाँ पे इथेनॉल की जगह पे मिथेनॉल यूज कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? मिथेनॉल यूज कर रहे हैं. एंड अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट इज एज इट इज. मतलब जो हमें अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट यूज करने के लिए बोला है ना, तो वो वही यूज कर रहे हैं. तो इसका कलर जो है हमें पिंक बताया था, लेकिन यहाँ पे इतना पिंक ये दिख नहीं रहा है, बराबर. लेकिन फिर भी इट इज स्टिल रिलेटेबल. सी, नाउ वी आर एडिंग दैट टू द solution, so that has converted to methanoic acid. ओके, सो देखो इसमें क्या हुआ. सी, दिस इज व्हाट, दिस इज मिथेनॉल. ओके, दिस इज मिथेनॉल. इसमें एक OH है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप. ओके, OH, एंड दिस इज द कार्बन एटम एंड दीज थ्री आर हाइड्रोजन. ओके, सो ये क्या बना? ये बना मिथेनोइक एसिड. व्हाट इज इट? इट इज मिथेनोइक एसिड. नाउ लेट्स मूव फर्दर. You can keep observing this. So we can say that methanol undergoes oxidation in the presence of alkaline potassium permanganate to give methanoic acid. Similarly, let's take another carbon compound, ethanol, in a test tube. Now add a small amount of acidified potassium dichromate to it. It will result in the formation of another carbon compound, ethanoic acid. Once again, if we compare the structure of ethanol and ethanoic acid, we get to see that in an ethanol molecule, there is only one oxygen atom attached to one of the carbon atoms. On the other hand, in a molecule of ethanoic acid, there are two oxygen atoms attached to the same carbon atom. So we can say that ethanol undergoes oxidation to give ethanoic acid in the presence of acidified potassium dichromate. ओके, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है. ठीक है, कि देखिए इथेनॉल में क्या था, एक ही ऑक्सीजन का एटम था, लेकिन उसे एक और ऑक्सीजन का एटम मिल गया, मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया, बराबर. उसे ऑक्सीजन का एक एटम मिल गया ना, सो इट उसका ऑक्सीडेशन हो गया, एंड द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज व्हाट? इथेनोइक एसिड. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. Okay, so that was about, sorry, I just stopped sharing. I'll just present the screen again. Okay, so ये था ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ओके, नाउ हम एडिशन रिएक्शन के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे. सो लेट मी जस्ट गेट द वीडियो एंड we will proceed with that. Okay, तो सबसे पहले जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकली हम जान लेते हैं एडिशन रिएक्शन क्या होती है. नाउ सी, हमें एपरेटस चाहिए, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर्स, एंड केमिकल्स चाहिए, टिंचर आयोडीन, ब्रोमीन वाटर, लिक्विफाइड वनस्पति घी, वेरियस वेजिटेबल ऑयल दैट माइट बी ऑफ पीनट, safflower, sunflower, olive, etc. Now procedure is take 4 ml oil in a test tube and add 4 drops of tincture iodine or bromine water in it. Shake the test tube, find out whether the original color of bromine or iodine disappears or not. Repeat the same procedure using oils and वनस्पति घी. तो इसमें हमें क्या ऑब्जर्व करना है, आयोडीन का कलर या फिर ब्रोमीन का कलर चेंज होता है या फिर नहीं होता है, ये हमें देखना है. ओके, तो इन द above activity, the observation of disappearing, diminishing color of bromine iodine indicates that bromine iodine is used up. Okay, तो जब उसका कलर वैनिश हो रहा है, मतलब कि वो जो सब्सटेंस हमने ऐड किया है उस ऑयल में, उसका यूज हो चुका है. ओके, इट इज बीइंग यूज्ड इन द केमिकल रिएक्शन और केमिकल, yes, chemical reaction.
This means that bromine iodine has undergone a reaction with the concerned substance. मतलब कि जब जिसमें हमने उस सब्सटेंस को ऐड किया है उसमें ब्रोमीन या फिर आयोडीन जो है वो उसके साथ में केमिकल रिएक्शन कर रहा है. दिस रिएक्शन इज एन एडिशन reaction when a carbon compound combines with another compound to form a product that contains all the atoms of both the reactants. Now see, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन कंपाउंड जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन हो रहा है, दैट इज बीइंग एडेड अप. तो दो रिएक्टेंट्स है यहाँ पे और हमें क्या मिल रहा है, एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है. इट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन. Unsaturated compounds contain a multiple bond as their functional group. They undergo addition reaction to form saturated compound as the product. In addition, reaction of unsaturated compound with iodine or bromine takes place instantaneously at room temperature. Moreover, the color change can be felt by eyes. Therefore, this reaction is used as a test for detection of a multiple bond in the carbon compound. In the above activity, use the test for detection, the color of iodine bromine disappears and the reaction between the oil and iodine. However, there will be no change with vanaspati ghee. What inference will you draw from this? Which of the substances do contain the multiple bonds? तो एडिशन रिएक्शन में जो याद रखने वाले पॉइंट्स है वो क्या है कि पहला पॉइंट, इसमें दो रिएक्टेंट्स रहेंगे और प्रोडक्ट कितने रहेंगे, प्रोडक्ट एक ही रहेगा. दूसरी बात, one of them will be a carbon compound and that will be mostly unsaturated carbon compound. ओके, पहला क्या रहेगा, जो कंपाउंड रहेगा वो कैसा रहेगा, अनसैचुरेटेड रहेगा. मतलब कि उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स रहेंगे, इधर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. जब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं कार्बन एटम्स के बीच में तब उसे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, बराबर. तो इसी तरह का एक कंपाउंड रहेगा एंड आफ्टर द एडिशन रिएक्शन इट विल बी कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड कंपाउंड. ठीक है, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट था हमारा, जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस था दैट वाज अनसैचुरेटेड बट द बाय प्रोडक्ट इज saturated. See, unsaturated compounds contain, okay, and undergo addition reaction to form saturated compound as a product. ठीक है, अगर वो एडिशन रिएक्शन में जाएंगे तो सैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म करेंगे. अभी जो हमने पढ़ा या फिर जो सुना आपने वो मैं आपको दिखाऊंगा. ओके, नाउ सी, आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन अगेन. Okay, so see, एडिशन रिएक्शन, पहले तो हम एडिशन रिएक्शन देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन जो है वो बाद में देखेंगे. ठीक है, सो देखिए ये मीथेन है, ये इथेन है. मीथेन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. इथीन, इट इज नॉट इथेन आल्सो, इट इज इथीन, इट इज unsaturated. Why it is unsaturated? Because there is a double bond between the carbon atoms. Okay, now go further. Methane is saturated compound. Shall I turn on the audio as well? Okay, let me just turn on the audio as well. Let's first check out the reaction of ethene with chlorine. The presence of the double bond makes ethene quite reactive. When we add chlorine to ethene in the presence of ferric chloride, the double bond of ethene breaks partially. The two carbon atoms in turn combine with one chlorine atom each, thereby completing their valency. The compound so formed is 1,2-dichloroethane and it is a saturated compound. Let's now check out the reaction of the compound methane with chlorine. When methane is made to react with chlorine in the presence of sunlight, one of its hydrogen atoms gets replaced by a chlorine atom. The product so formed is chloromethane. So this is basically substitution reaction. Okay, ये जो अभी देख रहे हो ना, ये substitution है, इसमें substitute हो गया ना. देखिए हाइड्रोजन का जो एटम था वो क्लोरीन के एटम के साथ में substitute हो गया, लेकिन जो पहले आपने देखा ना, तो पहले जो थी वो एडिशन रिएक्शन थी. इसमें देखिए
फिर से chloride. कर रहा हूँ, ऑडियो थोड़ा सा बंद करता हूँ क्योंकि आप लोगों ने सुना है, ठीक है। तो देखिए अनसैचुरेटेड में इसका एक जो बॉन्ड रहेगा कार्बन एटम्स के बीच में वो ब्रेक हो गया, और ये जो क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है ना, तो उस क्लोरीन के मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो जाएगा, एंड इट विल बी अटैच टू द कार्बन एटम्स लाइक दिस, सी। नाउ दिस इज सैचुरेटेड कंपाउंड, इजंट इट? ये सैचुरेटेड कंपाउंड हुआ क्योंकि अभी कार्बन एटम्स के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। पहले कैसा था? डबल बॉन्ड था, अभी सिंगल बॉन्ड हो चुका है। ओके, सो दिस इज एडिशन रिएक्शन, दिस इज एडिशन रिएक्शन। अभी सब्स्टिट्यूशन भी आप देख ही लीजिए, ठीक है। And continuous exposure to sunlight, the chlorine atoms replace all the hydrogen atoms of methane one by one, giving rise to the products dichloromethane, chloroform, and carbon tetrachloride. सो यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मीथेन और क्लोरीन के बीच में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो उसके बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज क्लोरोमीथेन, सेकेंड वन इज डाइक्लोरोमीथेन प्लस क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और लास्ट वन इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, सो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तो आपको स्टडीज में मदद करेगा। ओके, So you have seen how differently chlorine reacts with two carbon compounds, ethene and methane. In case of ethene, the chlorine atoms add to the carbon atoms after partial breaking of the double bond. Since this reaction involves the addition of new atoms, it is known as the addition reaction. Ethene is not the only unsaturated compound that undergoes the addition reaction, but other unsaturated compounds also undergo the addition reaction under suitable conditions. These addition reactions of carbon compounds take place in the presence of some other compounds like ferric chloride, as in case of addition reaction of ethene and chlorine. Compounds like ferric chloride do not undergo any permanent change in them, but increase the rate of reaction. Such compounds are known as the catalyst. Some addition reactions of carbon compounds have industrial significance also. One such addition reaction is hydrogenation of the vegetable oils. Vegetable oils are long-chain unsaturated compounds. They undergo the addition reaction with hydrogen in the presence of nickel or palladium to form the vegetable ghee that are saturated compounds. Let us now get back to the reaction of methane with chlorine. Here, chlorine atoms replace or substitute the hydrogen atoms of methane. Since the reaction involves the substitution of hydrogen atoms with other atoms, it is known as the substitution reaction. Methane is not the only saturated compound that undergoes the substitution reaction. It takes place in the presence. Okay, so this was substitution and addition reaction. Okay, तो विजुअल्स की मदद से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैंने ये वीडियोस आपको दिखाए हैं। ओके, सो यू कैन फाइंड लाइक दीज वीडियोस ऑन यूट्यूब ऑल्सो, कि जिससे सी इफ यू कैन नॉट इमेजिन अ थिंग यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब, तो इससे आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ में एडिशन रिएक्शन हो गई, और नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उससे पहले हम ये पैराग्राफ एक बार रीड कर लेते हैं। The unsaturated compound can also undergo addition reaction with hydrogen to form a saturated compound. However, it is necessary to use catalysts like platinum or nickel for this reaction. We have already seen that catalyst is a such substance due to presence of which rate of reaction changes without causing the disturbance to it. Now, this reaction is used for hydrogenation of वेजिटेबल ऑयल्स। तो हमने देखा कि वेजिटेबल ऑयल्स में जो है एडिशन रिएक्शन क्विकली नहीं होती है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कैटलिस्ट रखना पड़ेगा, एंड देन द रिएक्शन विल बी हैपनिंग देयर। Now, unsaturated fats containing double bonds are healthy, while saturated fats are harmful for health. So this is very important sentence
विथ रिस्पेक्ट और अकॉर्ड व्हाट वी कैन से, मतलब आपकी सेहत के हिसाब से ये जो सेंटेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अनसैचुरेटेड जो फैट्स रहते हैं वो अच्छे रहते हैं, वो ठीक है हेल्थ के लिए, बट जो सैचुरेटेड फैट्स रहेंगे, सैचुरेटेड फैट्स हार्मफुल है हेल्थ के लिए। ओके, नो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में आपने ऑलरेडी वीडियो देख रखा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे पढ़ के बताना चाहूंगा। एज द सिंगल बॉन्ड्स C-H and C-C are very strong, the saturated hydrocarbons are not reactive and therefore they remain inert in presence of most reagents. Now, however, saturated hydrocarbons in presence of sunlight react rapidly with chlorine. In this reaction, chlorine atoms replace one by one all the hydrogen atoms in the saturated hydrocarbon. The reaction in which the place of the one of the atom group in a reactant is taken by another atom group of atoms is called substitution reaction. Chlorination of methane is a substitution reaction which gives four products. ना तो आपने पहले ही देखा था, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था ना, इसमें आपने देखा है कि पहले क्या होता है, पहले क्लोरीन का एक एटम जो है वो सब्स्टिट्यूट करता है एक हाइड्रोजन एटम को, बाद में दो एटम को सब्स्टिट्यूट करता है, बाद में तीन एटम को सब्स्टिट्यूट करता है, बाद में चार एटम को सब्स्टिट्यूट करता है, बराबर। तो इस तरह से क्लोरीन में और मीथेन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी लेने के लिए बोला था। ओके, नाउ दीज आर द और दैट आर द components that you get when this reaction happens under the sunlight. Now you have learned about four types of common reactions in the previous chapter, in which of these four types the addition and substitution reaction of carbon compounds can be included. What are the additional details of difference in the addition and substitution reaction? तो addition और substitution reaction में जो है difference बहुत ज्यादा है, बराबर, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में दो कंपाउंड का मिलके एक कंपाउंड बनता है, और सब्स्टिट्यूशन में दो कंपाउंड के दो कंपाउंड ही हमें मिलते हैं, लेकिन उनमें जो एटम्स है वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। एडिशन रिएक्शन में एटम्स की एडिशन हो जाती है, वी गेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स एज इट इज एज आवर प्रोडक्ट। नाउ important carbon compounds, that is ethanol and ethanoic acid. Now ethanol and ethanoic acid are two of the commercially important carbon compounds. Let us now learn more about them. At room temperature, colorless ethanol is a liquid and its boiling point is 78 degrees Celsius. Generally, ethanol is also called alcohol or spirits. Okay, so ethanol is not nothing but what? It is alcohol. Okay, now ethanol is soluble in water in all proportions. When aqueous solution of ethanol is tested with litmus paper, it is found to be neutral. Consumption of small quantity of dilute ethanol shows its effects. Even though it is condemned, still it has remained socially widespread practice. Okay, so देखिए कि अगर हम छोटी मात्रा में भी इथेनॉल कंज्यूम करते हैं, डाइल्यूट इथेनॉल कंज्यूम करते हैं या फिर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो भी इसके इफेक्ट्स दिखने शुरू होते हैं। लेकिन अभी भी सोसाइटी में या फिर व्हाट वी कैन से अराउंड अस, लोग अभी भी अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। ओके, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट शोज इफेक्ट्स, बट स्टिल इट हैज रिमेन्ड सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस, मतलब कि बहुत सारे लोग इसे कंज्यूम करते हैं। नाउ कंजप्शन ऑफ अल्कोहल हार्म्स हेल्थ in number of ways. It adversely affects the physiological processes and the central nervous system. Okay, तो आपने कभी देखा होगा कि जो व्यक्ति ज्यादा मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करता है वो फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं रहता है। ओके, वो फिजिकली वीक रहता है। एज वेल एज जो व्यक्ति ने मतलब अल्कोहल पी रखी है ऑलरेडी, तो उसको मतलब कुछ समझ में नहीं है, वो समझ में नहीं आता, ही इज अनकॉन्शियस, मतलब कि वो कहीं पे गिर जाए, उसे कुछ चोट लग जाए, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। क्यों समझ में नहीं आता है? क्योंकि जो हमारा नर्वस सिस्टम रहता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो रहता है, जो कि हमें हमारे सराउंड में होने वाली हर एक चीज की जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन को देता है, नर्वस सिस्टम, तो वो नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ द कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। सो इस वजह से वो काम नहीं करता है और उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि what exactly is happening around him. Okay, so
फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एज वेल एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी ये जो अल्कोहल है या फिर इथेनॉल है ये एडवर्स इफेक्ट दिखाता है. सो कंजप्शन ऑफ even a small quantity of pure ethanol called absolute alcohol can be lethal. Okay, तो अगर इथेनॉल को, प्योर इथेनॉल के मतलब कि उसमें और कुछ भी डाला नहीं है, तो अगर छोटी मात्रा में भी अगर उसे पिया जाए इथेनॉल को, ओके, सो इट कैन बी लीथल. इट मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है इथेनॉल का कंजप्शन अगर वो प्योर फॉर्म में है तो. नाउ इथेनॉल बीइंग गुड सॉल्वेंट, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन सच एज tincture iodine, solution of iodine and ethanol, cough mixture and also in many tonics. Okay, तो इथेनॉल की ऐसी बात नहीं है कि मतलब इथेनॉल एक बुरा सब्सटेंस है या फिर ये गलत है. इथेनॉल के बाकी सारे भी बहुत सारे यूज. ओके, आपने कभी देखा होगा कि अगर आपको कोई चोट लगती है तो डॉक्टर जो है उस पे आयोडीन नाम का एक सोल्यूशन लगाता है, बराबर. तो उसके बाद में क्या होता है, थोड़ी सी जलन होनी शुरू हो जाती है हमारी उस चोट की जगह पे. ओके, तो उसमें भी इथेनॉल रहता है. तो इथेनॉल क्या है कि मतलब वो हेल्प करता है कि उसमें जो जर्म्स रहेंगे आपके चोट के अराउंड या फिर वाउंड के अराउंड, तो वो उसे खत्म करता है इथेनॉल. ओके, तो इसके लिए यूज हो जाता है. आफ्टर दैट, अभी आप सब लोगों को पता ही है जो हमारा हैंड सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर में भी अल्कोहल रहता है. बेसिकली मतलब हमें एडवाइस दिया जाता है कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज कीजिए. मतलब कि अल्कोहल का एक अच्छा यूज भी यहाँ पे है. सैनिटाइजर ने हमारा कितना काम किया है पिछले 6-8 महीने में, 10 महीने में या फिर 1 साल में, हम कह सकते हैं, बराबर. सैनिटाइजर इज द इसेंशियल थिंग फॉर अस. नो, बाकी सारी भी चीजें हैं जिसमें कि इथेनॉल का या फिर अल्कोहल का हम कह सकते हैं कि यूज होता है. लाइक स्प्रेज जो रहते हैं ना, वो डिओज वगैरह स्प्रेज, बराबर, तो उसमें भी इथेनॉल का यूज होता है. तो इथेनॉल का अच्छा यूज भी है, और अगर हम उसे प्योर फॉर्म में अगर पी रहे हैं तो इट कैन turn out lethal for us also. Okay, so it is not good to consume ethanol in its purest form, और बेसिकली जिसे हम अल्कोहल कंजप्शन कहते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए. लेकिन जो बाकी चीजें हैं उसमें इथेनॉल का यूज होता है. सो इट इज वेरी यूजफुल सब्सटेंस और इट इज वेरी यूजफुल कंपाउंड वी कैन से. Now, chemical properties of ethanol. What are the chemical properties of ethanol we are going to see here? You have learned about the oxidation reaction of ethanol in the previous unit of this chapter. Two more reactions of ethanol are as follows. The functional group OH plays an important role in reactions of ethanol. तो पहले तो हमने इथेनॉल की रिएक्शन देखी और ऑक्सीडेशन देखा उसका. उसमें क्या हो रहा था, इथेनॉल का इथेनोइक एसिड क्रिएट हो रहा था या फिर बन रहा था, बराबर. नाउ वी आर गोइंग टू सी रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम. तो दिस इज सोडियम 2Na and this is ethanol, that is 2CH3-CH2-OH. So after the reaction, what we are going to get, sodium ethoside plus H2, that is hydrogen gas. Okay, तो सोडियम को अगर हम इथेनॉल में डालते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा और सोडियम इथोजाइड नाम का एक सब्सटेंस हमें मिलेगा. Now all the alcohols react with sodium metal to liberate hydrogen gas and form sodium alkoxide salts. In the reaction of ethanol with sodium metal, hydrogen gas and sodium ethoside are formed as products. Now methanol, that is C3OH, the lower homologue of ethanol, is poisonous and intake of its small quantity can affect vision and at times can be lethal. To prevent misuse of important commercial solvents ethanol, it is mixed with the poisonous methanol. Such ethanol is called denatured spirit. A blue dye is also added to it so that it is इजीली रिकग्नाइज्ड. ओके, तो मिथेनॉल नाम का जो है वो थोड़ा सा खतरनाक सब्सटेंस होता है जिसे कि नॉर्मल यूज में हम नहीं करते हैं. अभी देखिए कितना डिफरेंस है, मतलब कितना छोटा डिफरेंस है इन चीजों में. इथेनॉल में और मिथेनॉल में डिफरेंस क्या रहेगा, एक इथेनॉल में डबल बॉन्ड रहेगा और मिथेनॉल में सिंगल बॉन्ड रहेगा मोस्टली, बराबर. या फिर 2 कार्बन के एटम्स यहाँ पे है और वहां पे 1 कार्बन का एटम है. मिथेनॉल में 1 कार्बन का एटम है तो इथेनॉल में 2 कार्बन के एटम्स रहेंगे. ठीक है, लेकिन इथेनॉल इज यूजफुल बट मिथेनॉल इज हार्मफुल, इजंट इट? इथेनॉल इज यूजफुल बट मिथेनॉल इज हार्मफुल. सिमिलरली जब हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, नमक की, NaCl, Na इज वेरी फ्लेमेबल मेटल. ओके, मतलब कि व्हाट वी कैन से वेरी रिएक्टिव मेटल.
chlorine is a actually poisonous gas, isn't it? Chlorine is a poisonous gas, but when they undergoes the chemical reaction, sodium chloride, which is a essential thing for our life, बराबर, नमक जो है वो essential thing है हमारी लाइफ के लिए। तो केमिकल रिएक्शंस देखिए किस तरह से प्रॉपर्टीज चेंज करती है उस उन सब्सटेंसेस की। और एक चीज अगर आपने मतलब आपको पता है तो, कि हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा जो वॉशिंग सोडा हम खा नहीं सकते, बराबर, इट इज हार्मफुल टू इट, इजंट इट? लेकिन डू यू नो हाउ वॉशिंग बेकिंग सोडा इज मेड? बेकिंग सोडा किस तरह से बनाया जाता है? बेकिंग सोडा बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा की जरूरत पड़ती है। वॉशिंग सोडा के एक्वेस सॉल्यूशन में से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तब बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज इट कुकिंग सोडा, ओके, बेकिंग सोडा। तो मतलब कि वॉशिंग सोडा हम खा नहीं सकते, लेकिन बेकिंग सोडा हम खा सकते हैं। सो इस तरह से प्रॉपर्टीज चेंज होती है। ओके, नाउ आई जस्ट वांट टू शो यू द केमिकल sorry reaction of ethanol with sodium. So for that I just need your patience of 10 seconds. Okay, Om, that's fine, no problem if there is a network issue at your side. Okay, let me just find the video that I want to show you, reaction of sodium with ethanol. Okay, okay, I'm just presenting my screen once again. So see, I think my screen is visible to you. Okay, उस टेस्ट ट्यूब में क्या है? इथेनॉल है, and they are now putting sodium into it. Now as you can see the bubbles आप देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देखो, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देखो आपके मोबाइल में, यहाँ पे आपको बबल्स दिखाई देंगे। ओके, तो वो बबल्स क्या है? वो बबल्स किस चीज चीज के है वो? These bubbles are of hydrogen gas. Okay, मैं यहाँ पे जूम नहीं कर सकता, आप लोग जूम करके देख सकते हैं मोबाइल में अपने। ओके, Hydroxide, right? What do you think this is? There's ethanol in there. Sodium ethoxide, yeah. And here, Jenna, feel it? Yeah, it's You feel actually how really warm hot. it is, Yeah. right? So there's a exothermic reaction, right? Okay, so I don't know. It's essentially finally. okay, so that was the reaction of ethanol with sodium. नो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रहा था, मैंने बताया था ना, तो आपने वहां पे देख भी लिया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो यही रिएक्शन है जो वो उन्होंने किया है ना अभी, जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज दैट,
सोडियम मेटल, इथेनॉल एंड मैग्नीशियम रिबन। तो सोडियम मेटल को हमें क्या करना है, उसमें डालना है उस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। जो आपने देखा वो यही एक्सपेरिमेंट था। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ in previous standard you have learned that a moderately reactive metal such as magnesium react with strong acid to liberate hydrogen gas. Though ethanol is neutral, it reacts with sodium metal and liberates hydrogen gas. Sodium being highly reactive metal, it reacts with neutral functional group OH of ethanol। ठीक है, तो नॉर्मली जो रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं वो किसके साथ में ज्यादा रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बराबर। लेकिन इथेनॉल तो एसिड नहीं है, इट इज न्यूट्रल, बट स्टिल सोडियम बीइंग हाईली रिएक्टिव, it reacts with the functional group that is OH of ethanol. Okay, now dehydration reaction. When ethanol is heated at the temperature 170 degrees Celsius with excess amount of concentrated sulfuric acid, one molecule of water is removed from its molecule to form ethene, an unsaturated compound. Okay, so देखो ये इथेनॉल है, यहाँ पे इसे हमने क्या किया, हीटअप किया एट 170 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या मिला, देखो इथीन मिला, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड वाटर मिला। हेयर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट मींस व्हाट, डिहाइड्रेशन मींस व्हाट, जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है ना, तो आप क्या कहते हैं कि मैं डिहाइड्रेट हो चुका हूं, बराबर। तो यहाँ पे भी ये जो इथेनॉल है ये क्या हुआ है, डिहाइड्रेट हुआ है। कैसे डिहाइड्रेट हो गया है, इसमें से वाटर तो चला गया, बराबर, वाटर सेपरेट हो गया ना। तो वाटर सेपरेट होने की वजह से हम इसे कहेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ओके, नाउ alcohol of fuel. The sugarcane plant transforms solar energy into chemical energy very efficiently. When molasses obtained during production of sugar from sugarcane is subjected to fermentation, alcohol ethanol is obtained. On combustion in sufficient air, ethanol gives carbon dioxide and water as their only products. In this way, ethanol is a clean fuel. Therefore, in some countries it is used as an additive to increase the efficiency of petrol. Such a fuel is called gasohol. Okay, तो इथेनॉल एज अ फ्यूल मतलब अल्कोहल एज अ फ्यूल, अभी फिलहाल मतलब जो नई मूवीज है इसमें तो नहीं, लेकिन पुरानी मूवीज में आप देख सकते हो कि कोई भी मतलब आग वगैरह लगानी हो ना, तो वो जो शराब की बोतल रहती थी उससे भी मतलब वो आग लगाते थे। ओके, दे यूज टू यूज इट एज अ फ्यूल। ठीक है, मतलब कि इथेनॉल जो है, अल्कोहल जो है वो जलता भी है, मतलब अगर हम उसे जलाए तो। नाउ ethanoic acid. Ethanoic acid is a colorless liquid with boiling point of 118 degrees Celsius. Ethanoic acid is commonly known as acetic acid. Its aqueous solution is acidic and turns blue litmus red. Vinegar, which is used as a preservative in pickles, is 5 to 8% aqueous solution of acetic acid. The melting point of pure ethanoic acid is 17 degrees Celsius. Therefore, during winter, in cold countries, ethanoic acid freezes at room temperature itself and looks like ice. Therefore, it is named as glacial acetic acid. ओके, तो इथेनॉल के बाद इथेनोइक एसिड के भी कुछ यूजेस है। हमारे घर में जो पिकल है, उस अगर रेडीमेड पिकल लिया है तो रेडीमेड पिकल में जो है विनेगर डाला जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव। तो उस प्रिजर्वेटिव में क्या होता है, इथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, now which experiment is this experiment is dilute ethanoic acid and dilute hydrochloric acid। इसमें हमें क्या करना है, ग्लेस टाइल, ग्लास रॉड्स, पीएच पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर हमें डिप करना है और देखना है कि उसकी रीडिंग्स क्या क्या आते हैं, बराबर। तो एसिडिक एंड बेसिक मतलब एसिड जो रहेगा दैट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, रेड इनटू रेड। ओके, एंड बेसिक केमिकल्स और बेसिक सब्सटेंसेस, they convert red litmus into blue and blue into blue itself. Okay, so इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट हमें करना है। So mostly we will see a video on YouTube regarding this in the next class. Okay, so after that our next point will be chemical properties of ethanoic acid। तो ethanoic acid किस तरह से
उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट बिफोर दैट गिव मी फ्यू सेकेंड्स सो दैट आई कैन फाइंड दिस एक्सपेरिमेंट फॉर यू। ओके, चलो डिहाइड्रेशन रिएक्शन एक बार देख लेते हैं और आज का जो हमारा क्लास है वो खत्म करते हैं, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट सर्च अबाउट द डिहाइड्रेशन reaction of ethanol, is it? So इसका अगर कोई प्रैक्टिकल हमें दिखता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में नेक्स्ट क्लास में मैं सर्च करके रखूंगा, हम बाद में देखेंगे। ओके ओके, सो सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा कोई प्रैक्टिकल यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। प्रैक्टिकल वीडियो यहाँ पे मुझे यूट्यूब पे कोई दिख नहीं रहा है, सो विल नॉट गेट इनटू दिस, विल जस्ट take this video next in the next class, and our next topic will be chemical properties of ethanoic acid, and mostly in the next class we will be completing our this chapter as well as our syllabus. Okay, so that's it for today students. Thank you so much for joining, and I will see you in the next class. Till then, bye bye and thank you. Chalo, now you can leave the class students. Bye bye. Yes, bye Krishna, bye Om, bye Deep. Chalo, leave the class. Deep, leave the class. Om.